Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, working with styles and objects. In this chapter, you will learn about applying built-in styles and creating a new style, inserting a text box in WordArt, working with shapes, inserting symbols and special characters, inserting pictures, insert online pictures, inserting a table, adding a screenshot in a document. Now you know how to type text in MS Word. You also know the use of editing tools to make the document error-free. Do you know you can change the appearance of your text by changing the style, size and color. देखिए अब तो आपको पता है कि MS Word में किस तरह से टाइप करना होता है. ओके इसमें आप कुछ एडिटिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और आपको पता है आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर ये भी चेंज कर सकते हैं, राइट? Every predefined style has its own significance. That is, heading styles will have features required for a heading, or main body text style will have features related to text of the main body of the document. One can quickly apply these styles in order to save time and with new features as well. Users can apply these preset formatting styles or can create their own styles according to their requirement. By default, the style is set to normal style for the text in a document. There are two types of styles available. Number one, character style. This style is applied on the text or characters in a document including name, size, color, underline, bold, italic or borders and shading. Number two, paragraph style. This style is applied on the paragraph in a document including line spacing, margins, borders, alignment with character formatting as well. देखिए हर जो प्री डिफाइंड स्टाइल होता है उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक सिग्निफिकेंस है, राइट? तो आपका देखिए क्या होता है कि आप इन स्टाइल्स को क्विकली आप अप्लाई कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, राइट? इसके अलावा यूजर्स इन प्री सेट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं या अपना खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो जो बाय डिफॉल्ट है स्टाइल जो है आपका इज सेट टू नॉर्मल स्टाइल फॉर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, राइट? अब ये दो तरह के स्टाइल्स आपके, वो क्या है? कैरेक्टर स्टाइल, यानी कि ये आपका टेक्स्ट या कैरेक्टर्स में ये स्टाइल अप्लाई होता है, आपका जैसे नेम है, साइज है, कलर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, राइट? एंड पैराग्राफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये पैराग्राफ में आपका अप्लाई होता है, जो पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट में होता है, राइट? इंक्लूडिंग आपका लाइन स्पेसिंग है या फिर आपका मार्जिन्स है, बॉर्डर्स है, अलाइनमेंट है, राइट? अप्लाइंग बिल्ट इन स्टाइल्स. MS Word provides many built-in styles that are used in changing the appearance of the text. Follow the given steps. अब देखिए MS Word में बहुत सारे built-in styles हैं जिनसे आप अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. ओके सो देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट? Number one, select the text on which the style is to be applied. Number two, hover the mouse on the styles given the styles gallery. You can preview each type of a style like this and choose the style of your choice. 3. You can also click on Style dialog box launcher button which will provide you different styles in the Styles task pane. Choose any one of your choice. Number 4. Apply the style and notice the changes made in the appearance of the text. Okay, so first what you have to do is सबसे पहले आप ना वो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने स्टाइल अप्लाई करना. ओके तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. ओके अब माउस को आप होवर करेंगे जो आपके स्टाइल्स गैलरी में आपको दिए गए हैं स्टाइल्स. ओके अब इनमें से देखिए आप अपनी चॉइस का कोई भी स्टाइल जो है प्रीव्यू कर सकते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको क्लिक करेंगे और ये आपको देखिए डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स मिलेंगे. आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें से चूज़ करेंगे, देन अप्लाई करेंगे और देखिए आपका जो टेक्स्ट है किस तरह से इसका अपीयरेंस चेंज हो गया, राइट? क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल. अच्छा अभी तो हमने बात की थी कि इस तरह से अप्लाई करना है, अब हम क्रिएट कैसे करते हैं. ओके तो इसको समझने से पहले हम फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं. ओके टू शो द फॉर्मेटिंग मार्क्स प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्टेरिस्क, टू हाइड इट अगेन प्रेस इसकी कॉम्बिनेशन. ओके अगर आपको फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्टेरिस्क की, और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो फिर से आप इसकी कॉम्बिनेशन को प्रेस कर दीजिए. सिंपल. Okay, now creating a new style. To create a new style, follow the below steps. Number 1, select the text on which a style is to be applied. Click on Style dialog box launcher button. In the task pane, click on the new style icon located on the bottom left of the task pane.
2. The create new style from formatting dialog box comes on the screen. Type the name for the new style in the name text box and select the formatting features for the style. 3. Mark a check on the radio button, new documents based on this template. This will add this new style for all the documents in use. 4. Click on OK button and the new style will be available in the list. Okay. Now what you have to do is, सबसे पहले आपको अगेन वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिस पे आप अपना स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं. ओके ओके, नाउ सिलेक्ट करने के बाद आपके पास स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको क्लिक करेंगे. ओके, नाउ न्यू स्टाइल आइकन पे हम क्लिक करेंगे. ओके, अब देखिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग, राइट. अब इसमें आप अपने स्टाइल का नेम लिखेंगे. ओके, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं व्हाटएवर, और उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स है इसके हम इसे सिलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट है ना. अब इस पे क्या होगा कि जो न्यू स्टाइल है आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर आपका के लिए आपका एड ऑन हो जाएगा. ठीक है, देन ओके बटन. अब आपका ये जो न्यू स्टाइल आपने अपना क्रिएट किया ना, ये आपकी लिस्ट में अवेलेबल होगा, राइट. लर्न मोर. To modify the style, right click on the style and press modify option. In the dialog box, make the desired settings and click OK button. Okay. स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्टाइल पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आप प्रेस करेंगे मॉडिफाई ऑप्शन, और फिर डायलॉग बॉक्स में जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है आप उसको चेंज करने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे. ओके, नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. A text box is a placeholder through which we can enter text. We add it to our document so that we can put and type text anywhere. Text boxes can be useful for drawing attention towards specific text and also be helpful when we need to more text around in our document. Okay. Text box आपका place holder है जहाँ पे हम आपके जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं. ओके, इसको हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं सो दैट हम यहाँ पे अपने जो टाइप किया है हमने टेक्स्ट उसको हम रख सकें. ओके, और आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं ये आपके जैसे कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसकी तरफ आपका जो है अटेंशन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी ये टेक्स्ट बॉक्सेस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ओके, तो इसके किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे चलिए देखते हैं. उससे पहले देखते हैं फैक्ट फाइल. ऑटो फॉर्मेट फीचर ऑफ वर्ड चेंजेस द फॉर्मेटिंग और अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. एक फीचर है ऑटो फॉर्मेट. ओके, तो ये क्या करता है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और इसके अपीयरेंस को चेंज करता है, राइट. Now let's check out the steps. 1. Click on Insert tab, go to text box option under text group and click on it. 2. Click on simple text box and text box will appear on the page. 3. Type the text of your choice. The text will be adjusted according to the size of the text book. You can also adjust the size of the text book by moving the handles of the text box. 4. As the text box appears on the page, a format tab related to the text box styles will appear as well. Here, the appearance of the text box can be changed by giving different effects to it. 5. After doing everything, click anywhere outside from the text box on the document to continue further. Okay. तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे Insert tab पे क्लिक करेंगे. Now ये टेक्स्ट ग्रुप में आपके पास आएगा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन. ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में, और देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स जो पेज पे अपीयर हो रहा है. ओके, नाउ आप क्या करेंगे, आप अपनी चॉइस का टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे. अब जो टेक्स्ट है आपका, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया. ओके ओके, अच्छा देखिए अब आपका ये जो फॉर्मेट टैब है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल से रिलेटेड है, ये भी आपका अपीयर हो गया. ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो अपीयरेंस है टेक्स्ट बॉक्स का उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट इफेक्ट्स देके, राइट. उसके बाद आपने जैसे सारे चेंजेस कर लिए हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे. ओके, टू कंटिन्यू फर्दर. Next, inserting a word art. In Microsoft Word 2016, word art feature allows us to create a special text effects. It provides a unique look to the text. Using word art, you can create decorative effects such as curved, heavy, shadowed, three-dimensional, etc. Take the following steps to insert word art in a document. 1. Click on Insert tab, go to Word art option under text group and click on it. Choose any style of your choice and the placeholder will appear. Type the text in the space provided. 3. When the placeholder comes on the page, a format tab related to the word art styles also appears. Here we can change the appearance of the text by giving different effects to it.
4. We can add effects to the text. For this, click on text effects next to word art styles. Choose any one according to your need and apply to the text. Okay. Now देखिए word art में क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, जिसके से आप क्या कर सकते हैं कि स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. तो इससे आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा यूनिक आपका उसको लुक मिल जाता है. तो इसमें आपके पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कर्व्ड है या हैवी शेडो या 3 डायमेंशनल, इस तरह से आप डेकोरेटिव इफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो कैसे करना है, अगेन आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर वर्ड आर्ट ऑप्शन है आपके पास. ओके, आप देखिए जो भी आप चॉइस, इसमें देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना. ओके, तो कोई भी स्टाइल आप जैसे ही चूज करेंगे, प्लेस होल्डर अपीयर हो गया. ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट कुछ भी टाइप कर दीजिए. ओके, जैसे ही प्लेस होल्डर आता है पेज पे, तो एक फॉर्मेट टैब जो होता है ना वर्ड आर्ट से रिलेटेड, वो भी आपका अपीयर होता है. तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट इफेक्ट्स देके ना. इसके अलावा हम इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास वर्ड आर्ट स्टाइल है ना, इसके नेक्स्ट आपके है टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे. अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, वर्किंग विद शेप्स. The shapes is a drawing feature that helps us draw various shapes like stars, banners, callouts, connectors, etc. These shapes help us draw the attention of the user towards your message. To insert a shape in the document, the steps are as follows. 1. Click on Insert tab. Go to Shapes option under Illustrations group and click on it. 2. Choose any shape of your choice and drag the mouse on the working area. The selected shape will be drawn on the page. 3. As the shape appears on the page, a format tab related to the shape styles will appear as well, where you can change the appearance of the shape by giving different effects to it. 4. To add text in a shape, right click on the shape. Click on Add Text option from the shortcut menu. The insertion pointer will appear in the shape where you can type anything. 5. To apply shadow to a shape, click on Shape Effects option in Shape Styles group. Go to Shadow option and choose any shadow of your choice and it will be applied to the shape. Okay. Now अब आपको क्या करना है, आपको शेप अप्लाई करनी है, राइट. उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपका शेप क्या होता है कि आपका एक ड्राइंग फीचर है जिससे हम बहुत सारे शेप्स को बना सकते हैं. जैसे आपके बैनर्स होते हैं, कॉल आउट्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं ना, स्टार्स होते हैं, राइट. तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर ये जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है इसमें ऑप्शन है आपके पास शेप, इसको क्लिक करेंगे. अच्छा, अब आप कोई भी शेप इसमें से चूज कर सकते हैं, है ना. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस गिवन यू. फिर आप माउस को ड्रैग करेंगे वर्किंग एरिया तक, और जो आपने ये शेप सिलेक्ट की थी आपके पेज पे ड्रॉ होगी, राइट. ओके, अच्छा, जैसे ही शेप अपीयर होती है पेज में, अगेन एक फॉर्मेट टैब जो शेप स्टाइल से रिलेटेड है वो आपका अपीयर होगा, जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अब इस शेप में आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, शेप पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे, ये आपका जो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है. अब देखिए इंसर्शन पॉइंट आपका अपीयर हो गया ना शेप में. अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, शेडो अप्लाई करनी है शेप में. तो इसके लिए आप जाएंगे, आपके पास शेप स्टाइल्स ग्रुप है, इसमें शेप इफेक्ट्स है ना. फिर आप शेडो ऑप्शन पे जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे भी शेडो कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, कोई भी आप चॉइस, अपनी चॉइस का इसको चूज करेंगे और आपकी शेप में अप्लाई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. We can add symbols and special characters in a document. It helps the user to add a new feature to the document. These symbols or special characters are not available on the keyboard. So MS Word provides us facility of different symbols and characters. To add symbols or special characters to the document, the steps are as follows. See, हम एक्चुअली अपने डॉक्यूमेंट में ना कुछ सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें भी इंसर्ट कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में आपका ना एक न्यू फीचर ऐड ऑन हो जाता है. तो ये जो सिंबल्स या जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट. तो MS वर्ड में ये फैसिलिटी है जिसमें आपको डिफरेंट सिंबल्स और कैरेक्टर्स मिलते हैं, राइट. तो इसके स्टेप्स क्या हैं, चलिए देखते हैं कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं symbols या फिर special characters को. Let's check out. Number 1, place the cursor where you want to add the symbol in the document. 2, click on Insert tab, go to Symbols option under Symbols group and click on it. 3, click on More Symbols option located at the end of the list. 4, the symbol dialog box comes on the screen. Select the Symbols tab and choose any symbol of your choice. 5, choose the font that you like, such as
wingdings and the related symbols will appear below. 6. Click on insert button after selecting the symbol. It will be inserted on the page. Click on close button. Okay. So what you have to do, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आप सिंबल को ऐड करना चाहते हैं ना डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले अपने कर्सर को वहाँ प्लेस कर दीजिए. ओके, प्लेस किया. नाउ इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. फिर सिंबल्स ग्रुप में सिंबल ऑप्शन जो है इसको क्लिक करेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए मोर सिंबल्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे. ओके, अब ये जो डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ गया है. अब आप इसमें से सिंबल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी. देखिए देयर आर सो मेनी सिंबल्स आर देयर. ओके, इसके बाद फॉन्ट आपको जो चाहिए, जैसे कि विंगडिंग्स है. ओके, विंगडिंग्स है इसमें, तो इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड आपके पास सिंबल्स आ गए विंगडिंग से रिलेटेड. अब आप करेंगे क्या, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चाहिए, एंड देन क्लोज. ओके, next, inserting pictures. We can add pictures in our document. It helps us to illustrate the information in a better way. This also upgrades the quality of the document as pictures attracts the audience. To insert a picture in the document, the steps are as follows. 1. Click on Insert tab, go to Pictures option under Illustrations group and click on it. 2. The Insert Picture dialog box appears. Browse and select the picture of your choice and click on Insert button. 3. As a picture is added on the page, a Format tab related to the picture tools will appear as well, where you can change the appearance of the picture by giving different effects to it. Okay, अब आपको क्या करना है, देखिए पिक्चर्स ऐड ऑन करने हैं डॉक्यूमेंट में. इससे क्या होता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी वो अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि पिक्चर्स आपको पता है ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, राइट. इनफैक्ट हम लोग भी जो हैं, हमें पिक्चर अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट में मिलता है तो हमें वो अट्रैक्टिव लगती है. ओके, सो हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर, लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले विल गो टू ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक करेंगे. देन इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपका पिक्चर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे. अब ये देखिए इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. अब आप इसमें से कोई भी पिक्चर अपनी चॉइस का सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. ओके, अब देखिए आपकी जो पिक्चर है वो ऐड हो गई है पेज पे. तो फॉर्मेट टैब जो से रिलेटेड है पिक्चर टूल से वो आपका अपीयर हो गया. आप यहाँ पे कुछ भी जो चेंजेस करने हैं आप उसे कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स. You can also add pictures directly from the internet. To add online pictures, go with the below steps. 1. Click on Insert tab. Go to Online Pictures option under Illustrations group and click on it. 2. The Insert Pictures dialog box will appear. 3. Type a keyword related to the picture in the Bing image search text box. Browse and select the picture of your choice and click on Insert button. 4. You can also simply click on search button to browse the inbuilt pictures provided. Select the picture of your choice and click on Insert button. ओके, अब आप पता है क्या कि आप इंटरनेट से भी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप जाएंगे इंसर्ट टैब में. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इलस्ट्रेशंस ग्रुप आता है. ऑनलाइन पिक्चर्स पे आप, और पिक्चर्स आपका ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे. ओके, अब ये देखिए ये आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, इंसर्ट पिक्चर. ओके, अब कोई भी आप कीवर्ड जो रिलेटेड है आपके पिक्चर से टाइप करेंगे. ओके, ये जो आपके पास बिंग इमेज सर्च बॉक्स है. फिर आपने इसमें क्या करना है, जैसे कि आपने डाल दिया बलून्स. ओके, अब देखिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं. आप इनमें से जो भी आपको चाहिए, आपका जो ऑप्शन है आपको चाहिए, आई मीन जो आपको चूज़ करना चाहते हैं, उसे चूज़ करने के बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे सर्च बटन है इस पर क्लिक करेंगे और फिर जो इनबिल्ट पिक्चर्स है उस पर ब्राउज करेंगे. जो भी पिक्चर आपकी चॉइस की आप उसे सिलेक्ट करेंगे, देन आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, activity time. You can insert your family picture in MS Word document. For this, follow the given steps. Open a new document in MS Word 2016. Go to Insert tab and insert your family picture in the document. From the Format tab, give a frame border from the picture styles list. Insert a shape and type My Lovely Family as shown in the figure. Save the document with name, family click and print a copy of the same. देखिए आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली पिक्चर को MS Word डॉक्यूमेंट में आप इंसर्ट कर सकते हैं. सेम आपको जो अभी तक स्टेप्स बताए थे उन्हीं से रिलेटेड है. अब फैमिली पिक्चर तो ऑफकोर्स आपके पास होगी तो आप उसे लेंगे. देखिए फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या करना है. आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है. ओके, MS Word 2016 में. फिर आप जाएंगे इंसर्ट टैब में एंड जिस तरह से भी आपने पिक्चर्स
को इंसर्ट किया था, राइट। इसी तरह से आपने क्या करना है, इंसर्ट करना अपनी फैमिली पिक्चर को। उसके बाद फॉर्मेट टैब पे जाके फ्रेम बॉर्डर उसको देंगे, ओके, ये आपको मिलेगा पिक्चर स्टाइल्स लिस्ट में। और फिर आपने इंसर्ट करना एक शेप, कोई भी आप शेप, जैसे आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप कॉल आउट दिया गया है ना, अब इसमें लिखेंगे माई लवली फैमिली, ओके। और फिर इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे फैमिली क्लिक के नाम से, ओके। दिस यू विल हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ओके। Next, inserting a table. A table is a collection of rows and columns which contains data and information in it. With the help of tables, user can save their data in a tabular form, which is more effective while retrieving the data from a table later. To add a table in a document, the steps are as follows. 1. Click on Insert tab, go to Table option under Tables group and click on it. 2. Click on Insert Table option. 3. An Insert Table dialog box comes on the screen. Give the number of rows and columns in the respective text boxes and click OK button. The table will be drawn on the page. 4. Enter the data in the table. 5. As the table is added on the page, a Format tab related to the table tools will appear as well, where you can change the appearance of the table by giving different effects to it. Okay. अब आपको देखिए क्या करना है, टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल आपको पता है कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, जिसमें आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है। तो टेबल की हेल्प से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं टैबुलर फॉर्म में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, राइट। तो कैसे आपको टेबल ऐड करनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, ओके। फिर टेबल्स ग्रुप है, इसमें आपके पास है टेबल ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखिए आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें अब आपको देना है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। उसके बाद इसको स्पेसिफाई करने के बाद क्लिक ओके। फिर हम डेटा को एंटर करेंगे टेबल में, है ना। जैसे ही आप क्या करते हैं, टेबल ऐड होती है आपकी पिक्चर में, तो देखिए फॉर्मेट टैब जो इससे रिलेटेड है, टेबल टूल से रिलेटेड, वो आपकी अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने अपीयरेंस में टेबल की, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, ओके। Next, adding a screenshot in a document. Adding a screenshot in a document is a new feature. A screenshot is like a picture captured of a screen which can be used in Word, Excel, Outlook and PowerPoint. It can capture the only windows that have not been minimized to the taskbar. Take the following steps to add a screenshot in a document. 1. Open the Word document and the window whose screenshot is to be captured. 2. Click on Insert tab, go to Screenshot option under Illustrations group and click on it. 3. It will show the available windows whose screenshot can be taken. Click on one of them according to the requirement. It will be added to the document. 4. You can also use a screen clipping tool to click the snapshot of the desired window. When clicked on this tool, go to other screen you want to capture. A plus sign will be shown. Drag it on the window to capture the screenshot. देखिए, adding a screenshot in a document ये आपका एक न्यू फीचर है। स्क्रीनशॉट आपको पता है एक पिक्चर है, लाइक अ पिक्चर कैप्चर्ड ऑफ अ स्क्रीन, ओके। तो जो आपका वर्ड में यूज़ कर सकते हैं आप, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो ये वही विंडोज कैप्चर करता है जो कि which have not been minimized to the taskbar, okay? तो कैसे आपको स्क्रीनशॉट ऐड करना है देखते हैं। सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट ओपन तो करेंगे एंड द विंडो जिसका स्क्रीनशॉट आपको कैप्चर करना है, ओके। इंसर्ट टैब पे आप गए, फिर इलिस्ट्रेशंस ग्रुप है, इसमें आपके पास स्क्रीनशॉट ऑप्शन है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, देखो आपको वही विंडो शो कर रहा है जिसका स्क्रीनशॉट लेना है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो हमारी जो डिज़ायर्ड विंडो उसका स्नैपशॉट है क्लिक करेगा। तो जब आप इस टूल पे क्लिक करेंगे ना, इसके बाद आप दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको कैप्चर करना। तो देखिए प्लस साइन आपका शो हो रहा है, इसको आप ड्रैग करेंगे विंडो पे और फिर स्क्रीनशॉट को कैप्चर करेंगे, ओके। समरी पॉइंट्स। A style is a collection of formatting features including font, size, style, color, etc. A text box is a graphic element used to write text in MS Word. MS Word provides word art as a special feature in order to give a special effects to the text. You can also add symbols and special characters in a document. Shapes, pictures, tables added to a document can be made innovative by applying special effects on them. A collection of rows and columns is called a table. MS Word offers a new feature of adding a screen to the document. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।